এখন 6:25 তো, উঠেছি 5:10-এ। 5:10-এ উঠেছি, উঠে বাচ্চাদের খেতে দিয়েছি। আমার আজকে ঘুম ভাঙেনি, ওর বাবাই মানে বাচ্চাদের খুলে দিয়েছে। খুলে দিতে তারপর আমি ভাত দিলাম। সব খেয়ে দিয়ে শুয়ে আছে, বেঁধে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওদিকে দরজা খোলা আছে তো, তুই অম করছিস কেন? ওই দিকে সব উঠোন ফুটন আমাদের সব ধোয়া হয়ে গেছে, সব কাজকর্ম, বাচ্চাদের ঘর ফর সব ব্লিচিং দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজ চলছে আর কি। হয়ে গেছে, শেয়ার করতে ভুলে গেলাম। ও ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। চা খাওয়া হয়ে গেছে, ওর বাবা জল আনতে চলে গেছে। এই যে আমাদের ভাত বসে গেছে এদিকে, আর এদিকে বাচ্চাদের, কাল রাত্রে বাচ্চাদের ভাত করিনি, ভাত ছিল বলে করিনি, তো ওদের ভোরবেলা হয়ে গেছে। এখন এদের এই ছাঁটফাট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রিজ থেকে 3 পিস মাছ বার করে রেখেছি, ওর বাবাকে মাছের ঝাল করে দেবো। দেখি আলু দিয়েই করে দেবো, আলু আর ওই বিনস আর গাজর দিয়েই করে দেবো। বাঙালি জীবনে কোনো দিন টাইমে কোথাও যায় না, যেত আগেকারে মনি ঋষিরা। হ্যাঁ, আগেকারে যারা ভালো ভালো মানুষ তারা টাইমে পাংচুয়াল ছিল। আর এখন আমার ঝোল হয়ে গেল, ওর বাবার পাতলা ঝোল। এ বাবারে আমি খাই না, এত ভিটামিন খেলে আবার দরজা কাটতে হবে। ও খাক, ওর বাবা খাক। কী হয়েছে? যাই তাহলে। মাছের ঝোল শুধু আজকে হয়েছে, এখনও কিছু হয়নি। বাবা বেরিয়ে যাক, আমি আমার ধীরে সুস্থে সারাদিন টাইম নিয়ে সব কিছু করবো। এই যে ব্রেড দিয়ে, ব্রেডটাকে আগে সেঁকে নেবো। ওর হচ্ছে এই বান পাউরুটিটা করে দেবো, আর 2টো স্লাইস দিয়ে দেবো। দিলে আর এই যে চিজ দিয়ে দেবো ভিতরে, গোলমরিচের গুঁড়ো দেবো, একটু সস দেবো, আর এটা হচ্ছে কী আছে, মেয়োনিজ দেবো। আর বাটার নেই বলে পিনাট বাটার দিয়ে দেবো। পিনাট বাটারটা দিয়ে নিয়েছি। এবারে ডিমের পোচটা দিলাম, দিয়ে এইবারে চিজগুলো, স্লাইস চিজটা এরম দিলাম। এই ম্যাও করবি না, দাদা টিফিন হচ্ছে, তোদের এক হাঁড়ি হয়ে ব্যাস বসানো রয়েছে, দেবো। দাঁড়া, মেয়োনিজটা খুলতে পারছি না, এক হাতে না হয় না। ছেলেটাকে বললাম দে না, ছেলে বললাম আমার সময় নেই, ড্রেস পরছি। মা পিঁপড়ে, মেয়োনিজ দিয়ে দিয়েছি। এবার দেবো সস। কী হচ্ছে বাবু, গোলমরিচ দেবো তো বাবুরে? আচ্ছা, দিলে আবার পরে বলবি কি একটা দিয়েছিলে খেতে পারলাম না। ও বাবা, সস টিপতে পারছি না, এক হাতে না আমার খুব অসুবিধা। ওই জন্য তো রান্নাবান্না আমি দেখাতে পারি না ঠিক মতো, জানেন। এই হয়ে গেছে, এই চাপা দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। টিফিন করে দিয়েছি, আর ওকে ভাত দেবো, খেয়ে চলে যাবে। কটা বাজে দেখুন, প্রায় 5টা বাজতে 10 মিনিট। আমার যাওয়ার কথা 4টেয়, যেতে পারলাম বা মানে পারছি না, এখন বেরোচ্ছি। যাবো পুষ্পাদের বাড়ি, পুষ্পাদের বাড়িতে প্রার্থনা হচ্ছে, পুষ্পা বলেছিল যাওয়ার জন্য, ওই জন্য। আর এই তো বাচ্চাদের ছাড়লাম, এত রোদ হয়েছে, সেই সারাদিন ওদের যেহেতু পুষ্পার বাচ্চাদের পারবো হয়েছে বলে তো আমি তো এখন সর্বক্ষণ আটকে রাখি না, ওদিকে যেতেই দিই না। এবার এখন না ছাড়লে হয়, পটি করবে, ওই জন্য ছাড়লাম। ছেড়ে আমি সব কিছু ওদের বিস্কুট খাইয়ে রেডি হতে হতে গরু এসে হাজির, জানেন। এবার গরু আসলে তো আমার ঘরের তো একদম, আমার তো এক পাও বেরোনোর মানে নেই, পারমিশন নেই। ও স্বাদের গাছ লাগিয়েছে না, সব খেয়ে পালিয়ে যাবে, ওই জন্য গরু আসলে একদম বেরোবো কি। এই তো গরু দেখুন না, এইদিকে একটা, আর মনে হয় রান্নাঘরের দিকে একটা। হ্যাঁ, এই দেখুন, ঠিক আছে, 2টো গরু ঘরের দুপাশে ঘুরছে, বড় বড় জার্সি গরু তো এগুলো, দানা চাবিনি, জার্সি গরু তো। আমার ভয় লাগছে, এবার আমার সেনাবাহিনীগুলো কি করবে, তাড়াবে কি জানি না, বলে যাচ্ছি যে একটু দেখে রাখিস। ঠাকুর এদের জ্বালায় আমার কোথাও বেরোনো হয় না, জানেন। চলুন, আর বকে লাভ নেই। আমার জার্সি গরুগুলো কোথায় কে জানে। হ্যাঁ, আমার জার্সি গরু একটাও নেই। গরু এসছে কোথায়, এই চিঠি, এই চিঠি, चले चलिए। उस दिन सीखा दीदी आपके घर पे, मैं एक बात बता रही थी ना, एक भैया का बात। एक भैया थे, वो ना मतलब इतना ज़्यादा वो ड्रिंक करते थे, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि उनका मतलब गिनती से बाहर है। और आधी आधी रात को वो ऐसे नाला होता है ना साइड में, वो
वो नाले में कहीं ना कहीं गिरे पड़ रहते थे। ठीक है, तो उनको बहुत कोशिश किया जाता था कि उनको प्रार्थना में बुलाया जाए, लेकिन जब भी उनको बुलाया तो बोलते थे क्या, नहीं नहीं मैं साफ नहीं हूँ। हमेशा वो यही बात बोलते थे कि मैं साफ नहीं हूँ। अच्छे से एक इंसान जानता है, आपका जबान ना बोले लेकिन आत्मा बोलता है कि वो गंदा चीज है ना। आत्मा जरूर एक बार आपको नॉक करेगा कि तू जो अंदर अपने ले रहा है वो गंदा है। तो हमेशा वो कहता था कि मैं साफ नहीं हूँ, भले ही वो नहा धोकर आया है लेकिन वो कहता था मैं साफ नहीं हूँ। तो उसको बहुत कोशिश किया जाता था कि प्रार्थना में लाए। उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई थी, बच्चे भी छोड़कर चले गए थे। क्यों? उसकी ये बैड हैबिट की वजह से। क्योंकि अब एक कोने में कहीं ना कहीं पड़े रहोगे तो कौन आपके साथ रहेगा? घर पे कभी नहीं रहता था, हमेशा कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहता था ड्रिंक करके। एक दिन ऐसा आया समय, ये पास्टर हमारा ना ये वचन उनको बोला कि आप लो इसको, या फिर किताब है इसको पढ़ना। अब सोचो इंसान कितना चालाक होता है, कह रहा है नहीं मैं इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं साफ नहीं रहता हूँ सर। तो सर बोल रहे भाई तुम नहाते नहीं हो क्या? तो सर नहाता हूँ लेकिन मैं साफ नहीं रहता। तो क्यों ऐसा, क्यों नहाते हो, साफ क्यों नहीं रहते हो? वो तो बता भी नहीं सक रहा है ना, सिर्फ इतना बता रहा है मैं साफ नहीं रहता हूँ इसीलिए मैं नहीं पढ़ सकता। एक दिन ऐसा समय आया कि वो इतना अच्छा वो पढ़ने भी लगा, और जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो धीरे 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 ना उनके अंदर परिवर्तन आने लगा। तब वो खुद रियलाइज करने लगा कि मैं जो कर रहा ना वो बिल्कुल गलत कर रहा था। क्योंकि ये ऐसा ही किताब है कि अगर पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलना ही बदलना है। ये मत सोचना कि हम पढ़ने के बाद क्रिश्चियन बन जाएंगे। पढ़ने के बाद कोई क्रिश्चियन नहीं बनेगा, लेकिन वो जो गलत वाला रास्ता है ना वहाँ से आप सही रास्ते पे ये आपको लेकर आएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि वो चर्च का एल्डर बन गया। आमीन। जो इंसान नली के कोने कोने पे गिरा रहता था वही इंसान इसको पढ़ने के बाद चर्च का एल्डर बन गया। वो जब एल्डर बन गया ना तो उसके आस पड़ोसी के लोग सोचने लगे कि ये जाता कहाँ है। ठीक है, डाउट करने लगे कि ये जाता कहाँ है। उसके द्वारा कम से कम 20 से 25 आत्माएं ना उस चर्च में आई। 20 से 25 लोग उस चर्च में आना शुरू कर दिए, क्योंकि उनका गेटअप देखने के बाद इंसान के मन में तो ये सवाल उठेगा ही ना कि ये पहले कैसा था, ये कोने कोने में पड़ा रहता था, और अब कैसा है, हाथ में ये ऐसे लिया और ऐसे करके एकदम निकल गया। कहाँ जा रहे हो? तो चर्च जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। जिसके हाथ में पहले बॉटल रहती थी वो बॉटल ऐसे पॉकेट में लेके घूमता रहता था, उसके हाथ में एल्डर बनने के बाद ना ये बाइबल उसके हाथ में रहती थी। तो कोई ना कोई इंसान तो पूछेगा ना, किसी ना किसी को तो डाउट होगी ना। तो उसके द्वारा ना बहुत सारा लोग चर्च में आए, और जितने लोग आए ना हर एक लोग पास्टर से एक ही सवाल किए कि पास्टर साहब आप इसको ऐसा क्या कर दिया। ये तो ऐसा था ना कि कोई लड़की डर से उसके सामने घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो इंसान ऐसा था कि कोई लड़की उसके डर से बाहर नहीं, अगर वो देख लिया ना कोई लड़की कि वो इंसान आ रहा है ना, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करके घर पे छुप जाती थी लड़की। इस तरीके का वो इंसान था। लेकिन ये वचन पढ़ने के बाद उसको इतना परिवर्तन किया परमेश्वर कि सब कुछ फिर से उसके पास आया, सब कुछ। तो इसीलिए परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर का वचन से कभी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कैसा माँ बाप नाराज होगा कि सब कुछ तो तेरा है, फिर तू क्यों जा रहा है कहीं और। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है, जिसके हम सब बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर के पास चरण में नहीं आकर हम दूसरे जगह जब अपना मन भटकाते हैं और पैसे देके सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं। हाँ पता है पैसे देकर सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन उधार नहीं खरीदा जा सकता पैसे देकर नहीं। आप कितना भी पैसा लगा दो वो उधार वो नहीं मिलेगा आपको, जो परमेश्वर फ्री में देता है। उसके बाद वचन कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। ध्यान से सुनना सब कोई। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के
आमीन। परमेश्वर ये भी कह दिया कि हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। परमेश्वर किससे कह रहा है? अपने बच्चों से। और बच्चा कौन है? हम सब हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है कि